Okay, student, assisted reproductive technologies, which are in short known as ART. What is ART? So it is a technology that is used to achieve pregnancy. Okay, in procedures such as fertility medication, artificial insemination, in vitro fertilization, or surrogacy. ठीक है, तो I have already discussed that there are some of the married couples, though they are living together for so many years, they have you can say healthy sexual relationships with each other. Okay, they are living together, they are you can say they are living together for 10 years, 15 years, or 5 years. Okay, they have a healthy married life with each other, but still they are not able to bear children. So in order to help such kind of couples or people, nowadays the medical world, they are using these kind of technologies, which are known as assisted reproductive technologies. Okay, children, so these assisted reproductive technologies, which are in short known as ART, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी हेल्प से वो कहते हैं कि if the fertility level in some of the people they are low, they are not able to give birth to children, or you can say in male the sperm count is low in ejaculations, so that can be improved by you can say by telling them proper medication. ठीक है, कई बार स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है, तो कुछ प्रॉपर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं और उनसे उनके अंदर फर्टिलिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है. और कई बार वो कहते हैं कि इफ द स्पर्म काउंट इज लो इन द ejaculates, one another technique is used under this assisted reproductive technologies, and that is known as artificial insemination. So what the doctors they actually do in artificial insemination, so here the semen of the husband, or you can say the donor male, it is collected, and later on from the sperms from this semen it is allowed to fertilize the ovum, and all of these fusions between the sperm and the ovum, they are actually carried out in laboratory conditions. ठीक है बेटे, क्योंकि सारी ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है उसमें से 95% जो है वो इन विट्रो टेक्निक्स होती है. तो एक चीज याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन हमेशा जो है वो इन विट्रो कंडीशंस में होगा, and in vitro conditions are actually the simulated conditions that generally resembles those conditions that these gametes they find during their fusion inside the body. Okay student, and sometimes वो कहते हैं कि सरोगेसी को भी यूज किया जाता है. तो सरोगेट मदर के बारे में आपने सुना हुआ है. ठीक है, if the women of that person is not able to give birth, अगर women जो है वो child को birth नहीं दे पाती है, some deformities are there in her reproductive organs, in that case one another woman is hired, and semen from the husband is collected that contains the sperm, and they are injected inside the body of that female, and later on when proper embryo development is there, and if the fertilization conditions that are suitable in his own wife, that from that surrogate mother the embryo, developed embryo, it is isolated and it is injected inside the uterus or in the fallopian tube. ठीक है बेटे, तो सरोगेसी जो है उसको भी कई बार यूज किया जाता है. फिर देखो फर्टिलाइजेशन थेरेपीज वर्ड का क्या मतलब है. फर्टिलाइजेशन थेरेपीज में एग्स और स्पर्म्स जो है उनमें नेसेसरी चेंजेस की जाती है. ठीक है, मैनिपुलेट उनको किया जाता है. समटाइम्स द sperms that are present in the male ejaculate, they are not of the vigorous mortality, and because of this they are not able to fertilize the ovum. Sometimes कहते हैं कि एग का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, so there are some special type of therapies that are generally done, and they are actually doing manipulations in the nature of egg as well as the sperms, and later when improvements are there, then fertilization it can be easily happen. Okay, here again the fertilization is done in laboratory conditions, and later on the fertilized embryo is inserted inside the body of the mother. Okay bete, another thing is involved surgically removing eggs from the women and combining them with sperms in the laboratory. तो ये सब बच्चों को क्लियर है कि जब भी इन विट्रो टेक्निक्स परफॉर्म की जानी है ना, तो हमेशा जो विमेन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, या तो उसके अंदर एग जो है वो रिलीज हो जाता है, पर आफ्टर रिलीजिंग एग जो है रिलीज होने के बाद जो है उसका फर्टिलाइजेशन जो है वो स्किप कर जाता है.
ठीक है, या तो एग जो है इसका मूवमेंट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होता थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स एंड देयर इज अ डिले of the egg to reaching that site of fertilization, that is actually the ampullary thymic junction, and sperm जो है वो वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, एग जो है वो डिले कर गया है। ठीक है, तो उस केस में वो कहता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ पे अवॉइड हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस जो है उसके अंदर जो है इन विट्रो टेक्निक्स जो उनको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गिफ्ट के बारे में पहले लिख लिया हुआ है, पर मैं उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ देयर आर सम अदर टेक्निक्स दैट कम अंडर दिस in vitro fertilization. So students, I am on page number 64 of your book, paragraph number 2, where it is written in vitro fertilization. Okay, so by in vitro fertilization we always mean the fertilization that occurs outside the body in almost similar conditions that are actually present inside the body of the patient. Okay, तो कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करवाया जाएगा, बॉडी से बाहर करवाया जाएगा, पर मेन चीज ये है कि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए कंडीशंस रिक्वायर्ड थी विद इन द बॉडी, दैट काइंड ऑफ सिमिलर कंडीशंस दे आर क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी so that the proper fusion of the gametes, that is the sperm and the ovum, it takes place and we get a successful embryo, and that embryo is later implanted inside the body. So here I am going to tell you that when the fusion of these gametes, that is the male gamete sperm and female gamete ovum, it takes place in laboratory conditions and we become successful in getting the fertilized zygote and embryo, then this embryo is at various stages of development. ठीक है, आपको बताया था कि एम्ब्रियो जो है इसमें काफी सारी क्लीवेज डिविजन्स होती हैं। पहले वो 8 सेल एम्ब्रियो बन जाता है, 16 सेल बनते हैं, देन 32 सेल एम्ब्रियोज देयर, देन 64 सेल एम्ब्रियोज देयर। ठीक है, हाउ मेनी blastomeres they are actually present inside that embryo? So if the embryo it is of 8 blastomere, I'm again repeating, if the embryo is of 8 blastomere, so that fertilized embryo, it is actually transferred in the fallopian tubes. Remember student, that embryo of 8 blastomere always transfer in the fallopian tube. ठीक है, और इस मेथड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? zygote intrafallopian transfer या ZIFT कहते हैं। तो ZIFT is very much similar to in vitro fertilization technique that generally happens in laboratory. तो यहाँ पे young embryo जो होता है जिसमें लगभग कितने ब्लास्टोमेयर होते हैं? 8 ब्लास्टोमेयर्स, तो उसको फिलोपियन ट्यूब के अंदर जो है ट्रांसफर किया जाता है। याद रखिएगा, यूट्रस में ट्रांसफर नहीं किया जाता 8 ब्लास्टोमेयर वाला एम्ब्रियो। उसके बाद देखिए दूसरी चीज जो है वो है इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर। आई हैव नॉट रिटन हियर, आई हैव रिटन गिफ्ट एंड ICSE, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले उसी के साथ रिलेटेड है इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका एम्ब्रियो, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, इफ इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर वाला एम्ब्रियो है तो उसको किसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा? यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। और इस टेक्निक को हम IUT कहते हैं, दैट इज इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने अच्छे से याद रखनी है। जिफ्ट का मतलब होता है कि द एम्ब्रियो व्हिच जनरली कंसिस्ट ऑफ 8 ब्लास्टोमेयर, इट इज शिफ्टेड इन द fallopian tube and it is known as a ZIFT. And the embryo that is more than 8 blastomere, it is not shifted in the fallopian tube, whereas it is shifted in the uterus, and that is known as intrauterine transfer, IUT. ओके बेटे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर पे, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं गिफ्ट। देखो नेम से ही पता लग रहा है गिफ्ट का मतलब क्या है, कि यहाँ पे वो कहते हैं कि डोनर जो है उसमें से ओवम कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम विच इज कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द fallopian ट्यूब। तो कोई डोनर फीमेल में से हम क्या करते हैं? ओवम कलेक्ट कर लेते हैं और वो ओवम जो है उसको फिर fallopian ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, बिकॉज दिस ओवम इज एक्चुअली इट इज कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर विमेन, तो इसीलिए हमने इस मेथड को गिफ्ट नेम दिया है। ठीक है, बिकॉज द women who is the wife of that person, he is not able to produce ova. There may be certain problems in her ovaries, he is not able to produce ova, or the process of ovulation cannot successfully happen in the ovaries. So for this purpose what we do generally, क्या करते हैं, डोनर वुमेन जो है उसमें से ओवम कलेक्ट किया जाता है,
और उसके बाद वो कहते हैं कि ओवम जो है उसको फिलोपियन ट्यूब के अंदर जो है रखा जाता है, ठीक है। अनदर फीमेल जो है उसमें से कलेक्ट करके फिलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर उसको रखा जाता है सुटेबल कंडीशंस पर। वो कहते हैं कि दूसरे विमेन जो है, जो मेन विमेन है, जो वाइफ है उस पर्सन की, उसके फिलोपियन ट्यूब्स में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मतलब ओवम जो है उसको प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम है उसको, पर फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाती है विमेन के अंदर जो वाइफ है उस पर्सन, ठीक है। तो इस केस में स्पर्म्स जो है वो हस्बैंड जो है उसमें से कलेक्ट किए जाएंगे, and those sperms we are able to fertilize that ovum which is actually collected from some other women and placed in his wife fallopian tubes, and later on successful fertilization is there, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन वुमेन की बॉडी में मतलब अपने आप होगा, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, गिफ्ट बोला गया। So the definition is given in your NCERT book. I am going to read it for you. Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube. This is gamete intra-fallopian transfer of another female who cannot produce one. ठीक है बेटे, this another female is actually the wife of that person, but can provide suitable environment for fertilization and further development. तो इसका मतलब जो पर्सन हस्बैंड है उसके स्पर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है, lot of sperms are there in the ejaculate, but the woman who is the wife of that person is not able to produce ovum. So here ovum is collected from some other woman, placed in the fallopian tube of his wife, and the sperms of the husband is used to fertilize the ovum. So proper environment for fertilization is there inside the woman body. Okay, this is very much clear. And see the next one, there is one another process, and that is known as intracytoplasmic sperm injection. ठीक है, this intracytoplasmic sperm injection, what it is? So this intracytoplasmic sperm injection is a special kind of procedure, and here what is the special thing? Sperm is directly injected into the ovum. ठीक है बेटे, ये कंडीशन भी किसके अंदर होती है, लेबोरेटरी के अंदर ही ये मेथड करवाए जाते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स लिए जाते हैं और स्पर्म्स को डायरेक्टली ओवम जो है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर स्पर्म्स जो है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, so that's why it is known as intracytoplasmic sperm injection. So it is often used for couples in which there are serious problems with the sperms. Sometimes it is used for older couples or for those with failed in vitro attempts, ठीक है। तो सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द मैच्योर एग, और उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएगा। एम्ब्रियो जो है जब उसको डेवलप करवा लिया है, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर सब कुछ किया जा रहा है ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब फर्टिलाइज्ड हमारे पास जाइगोट तैयार हो गया है, तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी ब्लास्टोमेयर इट एक्चुअली है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन वी हैव टू शिफ्ट दैट एम्ब्रियो ईदर इन द फैलोपियन ट्यूब और इन द यूट्रस। बस इतनी सी चीज आपने याद रखनी है कि इसके अंदर हम स्पर्म जो है इसको डायरेक्टली लेके उसको मैच्योर ओवम जो है उसके साइटोप्लाज्म में छोड़ देते हैं और उससे फर्टिलाइजेशन होता है लैब कंडीशंस में। और फिर फर्टिलाइज्ड जो एम्ब्रियो है, कितने उसमें ब्लास्टोमेयर है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको यूट्रस या फिर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो दिस मेथड इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन एंड इन शॉर्ट इट इज नोन एज ICSI, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक और यहाँ पे मैंने इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन के बारे में आपको बता रही हूँ। इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन, व्हाट वी एक्चुअली डूइंग इन दिस टेक्निक, सो इन दिस टेक्निक द सीमन इट इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, ठीक है। तो इसमें वो कहते हैं कि सीमन को या तो हस्बैंड में से कलेक्ट किया जाता है या फिर कोई हेल्दी डोनर में से कलेक्ट किया जाता है, एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द वेजाइना और इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो देखो उसका कारण ये हो सकता है कि समटाइम्स द सीमन ऑफ द हस्बैंड इट कैन नॉट कंटेन अबंडेंस ऑफ दोज स्पर्म्स, ठीक है, या फिर जो स्पर्म्स हैं वो वाइगोरियस मोर्टेलिटी वाले नहीं है, तो उस केस में कोई भी दूसरा पर्सन जो है उसका सीमन जो इसमें से स्पर्म्स लेकर उसको जो वाइफ है उसके यूट्रस के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है या वेजाइना में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि जो डोनर है, हेल्दी डोनर जो है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती यहाँ पर, ओके बेटे, अदरवाइज दैट पर्सन कैन क्लेम दैट आई एम द फादर ऑफ दिस सो एंड सो चाइल्ड। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। तो बस इतना सा डिफरेंस है, द सीमन इट इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड
or it is collected from some healthy donor and it is placed inside the vagina as well as the uterus of the female. So this method is known as intrauterine insemination. Okay, इसके अलावा देखो यहाँ पे I have written all the techniques. What kind of techniques we are generally studying here? Intrauterine insemination, and one another method that is explained here in short is artificial insemination. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इससे मिलता जुलता ही एक मेथड है. सो इसमें क्या होता है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द, you can say this method is generally used in those cases where infertility is seen, and here the male partner is not able to inseminate. ठीक है, तो मेल पार्टनर जो है he is not able to inject the sperms inside the female partner, and also the very low amount of sperms are there in the ejaculates. For correcting this, this method artificial insemination is used. So it is very much similar to this method that is intrauterine insemination. So here I have written the different type of methods here. Okay, so need not to remember all of this. Whatever is given in our NCERT book, we go through that. Okay, students, so here some more methods I have explained. So gamete intrafallopian transfer, gift के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट जो है उसमें हमेशा एक डोनर विमेन जो है वो होती है, और उसकी बॉडी में से हम एग्स जो है, ओवम जो है, उसको आइसोलेट करते हैं. So what this method actually is, it involves transferring eggs and sperms into the women's fallopian tube. ठीक है, one very important thing that is related with this method is fertilization. It occurs inside the women body. जो वाइफ है उसी की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, बस जो एग है वो किस में से कलेक्ट किए जाएंगे, डोनर विमेन में से कलेक्ट किए जाएंगे. स्पर्म जो है वो उसके अपने हस्बैंड के हो सकते हैं, या अगर हस्बैंड के इजैकुलेट में स्पर्म्स कम है तो डोनर मेल में से भी लिए जा सकते हैं, पर फर्टिलाइजेशन विमेन की बॉडी में होगा. तो कुछ केसेस के अंदर ऐसे ऑप्शंस जो हैं वो इन विट्रो टेक्निक्स में दिए जाते हैं. ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोसीजर एंड IVF एंड ZIFT प्रोसीजर्स इज दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द fallopian tube. ठीक है, दोनों बाकी जो पहले वाले मेथड थे ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के, जो हमने पहले मेथड स्टडी किए थे ZIFT के बारे में और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर के बारे में, तो दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो लैब कंडीशंस में आउटसाइड द बॉडी करवाया गया था, पर जो गिफ्ट होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन वुमेन की बॉडी के अंदर होता है. बस इतना सा डिफरेंस है. ठीक है, तो इस तरह से गिफ्ट जो है वो काम करता है. यहाँ मैंने लिखा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग स्पर्म फ्रॉम अ मेल इनटू द फीमेल टू इंड्यूस फर्टिलाइजेशन. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उस केसेस में होगा जब हस्बैंड के इजैकुलेट में स्पर्म काउंट कम है, या फिर हस्बैंड जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, तो इन दैट कंडीशन दिस मेथड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूज्ड, एंड चीफ अमंग दिस मेथड इज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें डोनर मेल जो है उसमें से स्पर्म्स कलेक्ट किए जाएंगे और वेजाइना और यूट्रस जो है उसके अंदर जो स्पर्म्स है हमको इंजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली इट मेक्स बेबीज विदाउट हैविंग एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगेन आई हैव रिटन हियर, डिपॉजिटिंग अ मैन्स सीमन इनटू द वेजाइना, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल और यूट्रस थ्रू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू ब्रिंग अबाउट कंसेप्शन विदाउट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी. तो इट हाउ इट कैन बी डन, तो कहाँ पे उसको इंजेक्ट किया गया स्पर्म्स को, उसके बेसिस पे अलग अलग तरह की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इट कैन बी इंट्रावेजाइनल, अगर वेजाइना में इंसर्ट किए गए हैं, इंट्रा सर्वाइकल सर्विक्स में इंसर्ट किए गए हैं, और इंट्रा यूट्राइन या यूट्रस में इंसर्ट किए गए हैं. ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग सम स्पेशल टाइप ऑफ सिरिंजेस और इंजेक्शंस. सो हियर सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट देयर. ओके स्टूडेंट, वी आर नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस, तो मैंने वैसे ही आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर हस्बैंड के जरिए करवाई जाती है तो हियर द सीमेन ऑफ द वुमेन्स हस्बैंड इज यूज्ड. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन थ्रू डोनर, सो इन दिस टाइप सीमेन ऑफ अनदर पर्सन अदर देन द हस्बैंड इज यूज्ड. एंड पूल्ड और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो हियर बोथ द सीमेन ऑफ हस्बैंड एज वेल एज द डोनर दे आर मिक्स्ड, and later they are used to enhancing the sperm count in the semen. So these are the different methods of artificial insemination. So that's all about this topic, in vitro fertilization. Student, one very small paragraph is given here at the last of the chapter. So here what they told you
that all of these in vitro techniques, they have required high precisions under qualified medical practitioners, professionals, and in all of these techniques, they also required expensive instrumentation. ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, अपैरेटस यूज होता है, वो काफी कॉस्टली होते हैं. तो जो भी पर्सन जो है इन विट्रो टेक्निक्स करवाते हैं और उनमें से बेबीज का बर्थ होता है, तो वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है. नॉट इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. And another thing is the infertility, you can say good kind of infertility centers, they are not present everywhere in our country, and they are also taking a lot of funds from the people. ठीक है, तो poor people cannot afford such kind of techniques. But those it is very much you can say a boon for those peoples or couples who are not able to give birth to children. So there may be some and other options they can opt for. ठीक है, या तो वो अगर इन विट्रो टेक्निक्स जो है उनका यूज कर सकते हैं तो दे कैन यूज इन विट्रो टेक्निक्स, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए एक अनदर ऑप्शन ये है कि वो ऑर्फन हाउस जो है, ठीक है, अनाथालय जिसे कहते हैं, उसमें से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो उससे जो नीडी चिल्ड्रंस होते हैं उनको पेरेंट्स मिल जाते हैं. ठीक है, और पेरेंट्स जो हैं उनको जो है बच्चे मिल जाते हैं. तो इस तरह से एक अनदर ऑप्शन उनके लिए हो सकता है. Another very important thing is why these in vitro techniques, they are not very much famous in our country, because so many emotional, religious and social factors, they are you can say attached with these. ठीक है, बहुत सारे मन में लोगों के जो एक फीलिंग्स आ जाती है कि if they are taking these techniques in vitro techniques, I have already explained that the semen is collected from some other person who is the donor male or donor women. Okay, so in that kind of cases, some of the people they have certain hidden questions in their mind that what kind of person he or she is, what is the character about that person. ठीक है, जिससे हमें ये चाइल्ड मिला है. तो ऐसी कई सारी चीजें उनके साथ उनके मन में आ जाती हैं. ठीक है, रिलीजियस एस्पेक्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, because this you can say child, it is actually created artificially in the laboratory, okay, by making use of some of the unknown persons. So here the some of the grandparents, they generally objected that what is actually the religion of that child or those persons ki jinse ye child jo hai हमको मिला है. So many emotional, religious aspects and social factors are also associated if some parents, they are interested to adopt some children from the orphan house. ठीक है, they are very much restricted in their feelings because they actually want to know the whole history about that child. जो भी अगर ऑर्फन में से जाके उन्होंने कोई बच्चा जो है उसको अडॉप्ट करना है, तो उनके मन में कई सारे यू कैन से क्वेश्चंस होते हैं कि ये चाइल्ड जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा होगा. ठीक है, तो किस तरह की फैमिली में से ये चाइल्ड आया है, या जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो इसकी वजह से बहुत सारे अडॉप्शन मेथड जो है ना, वो अपने कंट्री में जो है सक्सेसफुल नहीं रहते. ओके बेटा, तो इस तरह से उसने आपको ये बताया हुआ है कि लॉज जो है, प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉज, दे शुड बी फ्रेम फॉर द लीगल एडॉप्शंस. ठीक है, एंड दीज adoption methods as well as this in vitro techniques, they are very much beneficial for the couples who actually want to you can say looking for their parent who do want to become parents actually, but they are not able to give birth to their children. ठीक है, तो this completes our chapter. We have fully explained you the chapter in a very elaborated manner. So today onwards, I am going to send you this presentation also so that you can make a proper use of this. Okay, students. So today I am going to discuss few questions with you. After this,